Assalamu alaikum students. So I'm back again with another lecture which is 30th in series of this course on the MOSFET again, and today we will discuss the utilization or employment of the MOSFET in a circuit design which will act as an amplifier circuit. So here is a brief list of the topic that we shall consider in today's lecture. But before I move on to the design of the amplifier circuit using a MOSFET, I would like to give you some example on the DC analysis of the transistor itself. Particularly, if you remember, in lecture number 29 we discussed the IV characteristic of the transistor, and we had clearly defined in the IV curves three significant regions, namely the triode region, the saturation region, and the cutoff region of the IV characteristic. So we would like to discuss those three regions again, but in terms of the DC analysis, and we would see how to evaluate the drain current in response to the voltages applied. And if you remember the voltages applied, there are two voltages that are applied. One is the gate voltage with respect to the source, and the second is the drain voltage again with respect to the source. And this is, as usual in my lectures, I quote the original reference from where I borrow the figures and modify them slightly according to the needs of the lecture. But here is the reference for you to look at whenever you feel like doing so. Now, how do we proceed for the DC analysis? That is, to analyze the various regions of the ID-VD characteristic. That first we assume that the device operates in the saturation region, thus ID satisfies with ID and VG equation. If you recall, we had mentioned in lecture number 29 that it is VG, that is the gate voltage, that plays a significant role in the flow of the carriers from source to drain. And since we had used an NMOS transistor as an example, so the gate voltage was positive in our case. And when we apply a positive gate voltage, and if it is below a certain threshold voltage, of course no current would flow. So the gate voltage has to be slightly higher than a minimum voltage, namely threshold voltage. तो जब हमारी गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से इंक्रीज करती है, तो electrons from the source are attracted or flow towards the drain, provided we bias the drain as well with a voltage which is less than the gate voltage. तो हमारी एक करंट इस तरह फ्लो करती है. तो in the saturation region, actually, अगर आप IV characteristic को देखें, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी, कि saturation region implies कि drain current drain voltage से change नहीं होती. That is, by increasing the drain voltage, the drain current remains constant, but nevertheless it varies with the increase in the gate voltage. So it's the gate voltage which plays a significant role. That is, it is a voltage controlled current source device, and that's where it is this saturation region of the MOSFET that we will utilize for designing an amplifier circuit. So this is my point number one, that if we are operating in the saturation of the IV characteristic curves of a MOSFET transistor, then we know that ID varies only with the gate voltage, and the drain voltage has no significant effect on it at all. Then, according to the biasing method, we write the voltage loop equation. This has been always our practice in DC analysis, whether it was the bipolar junction transistor or simple amplifier, bipolar junction amplifier circuits, and now it is the third topic, which is the MOSFET amplifier circuits. We write Kirchhoff voltage loop, and I had written depending upon the biasing method, and this method we shall discuss in the next lecture. So combining the above two criterion, we can write down two equations and solve these equations in order to obtain the drain current in response to a certain gate voltage, and then of course for different gate voltages we can write down ID versus VD relations as well. So usually we can get two values of VG, that is the gate voltage. Only the one of the two has any physical
meaning. Then we have to check the values of VDS, as I just said कि VDS की different voltages apply करते हैं depending on the voltage of gate voltage. तो अगर आपको याद हो, अगर हम gate voltage बढ़ाएं तो जो चेंजेस टेक प्लेस करती हैं डिवाइस स्ट्रक्चर में, नंबर 1 वो मैं पहले भी आपको लेक्चर नंबर 28 और 27 में बता चुकी हूँ कि गेट वोल्टेज बढ़ाने से हमारे दो मैकेनिज्म्स होते हैं. नंबर 1 वी क्रिएट डिप्लीशन रीजन एंड नंबर 2 वी क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन चैनल व्हिच इज समटाइम्स नोन एज इन्वर्शन चैनल एज वेल, व्हिच कनेक्ट्स द सोर्स टू फिजिकली कनेक्ट्स द सोर्स टू द ड्रेन रीजन. अब अगर हमारी गेट वोल्टेज किसी मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो तो then we can have a significant layer of depletion as well as the n-channel width within the p-type substrate. p-type इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि हम n-channel MOSFET को डिस्कस कर रहे हैं. अब सेकेंड स्टेज पे VG यानी गेट वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जब हम ड्रेन को कोई पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो ड्रेन वोल्टेज की फिर हम आगे दो अगेन कैटेगरीज बना सकते हैं. नंबर 1, इफ द ड्रेन वोल्टेज is less than the gate voltage minus the threshold voltage. अब आपको ये भी याद होगा gate voltage VG minus VT is defined as the effective voltage of the transistor या overdrive voltage. Now you can see here that is this is the gate voltage VG minus VT. You can see it here. This is your gate voltage minus the threshold voltage, and this voltage is known as the effective voltage. So in the first condition, when the drain voltage is greater than or equal to the effective voltage applied to the gate, then we assume that if this is correct, then second criterion is if this is low, and if this is not correct, we shall use triode region equation to solve the problem again. ये आप देखिए कि जब हमारी voltages different हो, यानी VDS की voltage greater than इफेक्टिव वोल्टेज से ज़्यादा हो या इफेक्टिव वोल्टेज से कम हो, then we would be operating in either of the two regions, that is either we are working in the triode region or we are working in the saturation region. तो ये दो वोल्टेजेस देखने के बाद फिर क्योंकि अभी मैं आगे आपको चल के बताऊंगी कि इससे दो इम्पॉर्टेंट फ़र्क ये पड़ते हैं कि हमारे ID करंट का जो रिलेशन है विद द ड्रेन वोल्टेज वो स्क्वायर लॉ में है इफ़ वी आर यूटिलाइजिंग द इफ़ द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन रीजन, और लीनियर रीजन में आपको अच्छी तरह याद होगा बाय डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लीनियर द ड्रेन करंट वेरीज लीनियरली with the drain voltage. तो depending upon the equation, the two criterion, ये जो ऊपर मैंने लिस्ट किए हैं, इन दो criterion पे डिपेंड करते हुए हम assess कर सकते हैं whether the transistor is operating in the triode region or in the saturation region. तो फिर उस मुनासबत से हम DC एनालिसिस को की इक्वेशन करंट वोल्टेज इक्वेशन लिख के हम DC एनालिसिस को अकम्प्लिश कर सकते हैं. So this is my example, first example 4.2, and you recall the number, I have retained the same original number as in the reference book that I had quoted earlier in my lecture. Now this is an channel metal oxide semiconductor transistor, and it is operating in the saturation region. Thus we can write that the gate to drain voltage is less than thermal voltage. अब ये चीज़ यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको समझना चाहिए कि यहाँ अब मैं जो वोल्टेज represent कर रही हूँ, this voltage that I am representing now, this is the gate टू ड्रेन वोल्टेज, यानी ड्रेन की वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सोर्स नहीं. नॉर्मली हम गेट की वोल्टेज को विद रिस्पेक्ट टू सोर्स लिखते हैं, लिहाजा उस मुनासबत से हम VGS कहते हैं. ड्रेन की वोल्टेज को भी विद रिस्पेक्ट टू सोर्स हम मेजर करते हैं तो उसको हम VDS कहते हैं. लेकिन हियर आई एम राइटिंग द ड्रेन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द गेट वोल्टेज. सो इफ गेट टू ड्रेन टू गेट वोल्टेज इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, and our threshold voltage is about twice the size of the battery that you have, is about 2 volts, क्योंकि शुरू में मैंने जिक्र किया था threshold voltage is normally about 0.5 volts से 2 volts
तक की थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस हो सकती हैं किसी गिवन n चैनल मॉसफेट ट्रांजिस्टर की फॉर एनहांसमेंट मोड। तो यहाँ पे मैंने VT दैट इज़ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट्स लिए है और ड्रेन वोल्टेज with respect to the gate is less than the threshold voltage। तो आपको ये सारी वोल्टेजेस इसमें नज़र आ रही हैं। That drain voltage is 2.5, it is an NMOS transistor, hence the current flows from drain to source, and drain current ID is equal to source current IS, because the gate current, the third current in the loop at the third node, which is the gate node, is 0, और RD रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज, ड्रेन आउटपुट वोल्टेज VD मेजर कर सकते हैं। RS इज द सोर्स रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सर्किट में नज़र आ रही हैं। तो ये हमारी पहली एग्जाम्पल है। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहले हम एग्जैक्टली देख लेते हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम्पल में। ये सर्किट मैंने आपको दिखाया था और इस सर्किट को दोबारा मैं रिप्रोड्यूस करती हूँ, एंड देन we see what this example requires. This example says that we have to design the circuit shown in this figure 420 so that the transistor operates at the drain current of 0.4 milliamp and drain voltage is 0.5 volts. The NMOS transistor has thermal voltage of 0.7 volts and the transconductor, the mu and Cn parameter is the 100 microamp per volt square, and the length, the channel length for the NMOS transistor is 1 micron meter and width is 32 micron meter. So this is the data given, and any effects due to channel length modulation have been ignored. तो ये एक डेटा आपको दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर आपको नज़र आ रहा है। तो इसको देख के अब हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग भी इसमें दी हुई है। नाउ वी प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। Now, since the drain voltage is given and is greater than the output voltage that we obtain, this means that the NMOS transistor is operating in the saturation region, and we use the saturation region expression for the drain current, and we require and we determine the gate to source voltage which has been required by us in this example. ये मैंने एक्सप्रेशन टॉप पे आपको लिखा है, करंट का रिप्रोड्यूस किया है। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको लेक्चर नंबर 29 में भी दिया था और लेक्चर नंबर 28 में भी दिया था। इफ़ यू रिकॉल, सिंस वी सेड दैट वी आर ऑपरेटिंग in the saturation mode or saturation region of the IV characteristic of the NMOS transistor, तो आप बड़ी क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक square law है, the current varies as square of the effective potential, VG minus VT is defined as the effective potential. तो ID varies as square law of the effective potential, यानी जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट एज अ स्क्वायर ऑफ गेट वोल्टेज बढ़ रही है और ड्रेन वोल्टेज के साथ ये करंट कांस्टेंट रहती है। तो सैचुरेशन रीजन में फिर हमने ये वाला स्क्वायर लॉ वाला रिलेशनशिप करंट का इस्तेमाल किया है। नाउ इफ़ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव वोल्टेज, और यहाँ पे VGS माइनस VT आपकी आउटपुट वोल्टेज है, ये सारी वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो जवाब आता है तो उससे हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज आप डिफरेंट रिलेशनशिप्स को निकाल सकते हैं, विच इज़ अबाउट 1.2 वोल्ट्स आ रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये देखिए कि हमारी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो वेरी कर सकती है। जैसे मैंने ऊपर लिखा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इस टिपिकल सर्किट के लिए कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 0.5 वोल्ट टू 2 volts. थ्रेशोल्ड वोल्टेज का, टू एम्फसाइज वंस अगेन, कॉन्सेप्ट या आइडिया ये है कि आप बेशक गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दे भी दें तो जब तक एक मिनिमम अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगी गेट वोल्टेज तो कोई सिग्निफिकेंट ना तो चैनल विड्थ क्रिएट होगी और ना कोई करंट फ्लो करेगी, इवन अगर आप ड्रेन को वोल्टेज पॉजिटिव दे भी दें। इन अदर वर्ड्स, अगर VG
the transistor works in the following manner. आप गेट को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं और उसको इंक्रीज करते हैं इतनी सफिशिएंट अमाउंट यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से इंक्रीज करते हैं कि बियॉन्ड वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है एक्सेप्टर आयंस की, क्योंकि होल्स अगर पी टाइप सबस्ट्रेट है तो वो पुश डाउन हो जाते हैं. देन इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पी टाइप सबस्ट्रेट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव गेट इलेक्ट्रोड. तो एक एन चैनल क्रिएट हो गई इन्वर्शन लेयर यानी, और दूसरी आपकी डिप्लीशन लेयर एक्सेप्टर आयन की क्रिएट हो गई. ये दो प्रोसेसेस हुए गेट को एक सफिशिएंट पॉजिटिव वोल्टेज देने की वजह से. अब आपने एन चैनल भी क्रिएट कर दी लेकिन करंट फिर भी नहीं फ्लो होगी. वो इसलिए नहीं फ्लो होगी क्योंकि ड्रेन पर आपके पास कोई पोटेंशियल नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सोर्स से होते हुए चैनल में से गुजरते हुए ड्रेन तक अट्रैक्ट हों. तो दो चीज़ें क्लियर हो गई. We have to apply a sufficient positive voltage to the gate and then we have to apply a positive drain voltage as well. Now varying the drain voltage initially we will be increasing the drain current linearly with respect to the drain voltage. लेकिन एक certain drain voltage पे जाके फिर आपकी कर्व्स फ्लैट हो जाती हैं, सेचुरेट हो जाती हैं एंड देन द ड्रेन करंट ओनली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन गेट वोल्टेज. तो ये वो सारी फिजिकल मैकेनिज्म था, प्रोसेसेस थे जो मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिए. अब वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इट कुड बी फ्रॉम half a volt to 2 volts depending upon the channel length and channel width. That is the fabrication parameters of the NMOS transistor. और ये चीज़ें जो हैं mobility, the gate length and the gate width, channel width and the channel length, the channel width and electron mobility या carrier mobility, ये सारी चीज़ें फैब्रिकेशन के दौरान यानी मटीरियल डिवाइस फैब्रिकेशन के दौरान तय कर ली जाती हैं. इनकी वैल्यूज़ फिक्स कर ली जाती हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोसेसिंग पैरामीटर्स. तो ये एक टिपिकल वैल्यू है जो मैंने दी हुई है, लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में एग्जांपल में जो हमने वैल्यू इवेल्युएट की हुई है, यहाँ पर हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो 0.7 दी हुई है और इस 0.7 वोल्टेज को लेके अब हमारे इस 0.7 थ्रेशोल्ड वोल्टेज से हमने जो गेट वोल्टेज निकाली है वो 1.2 निकाली है. तो referring to figure 420 again, then we can calculate thus the source must be at minus 1.2 volt and we require the value of RS which can be determined from this Ohm's law relationship. तो ये वैल्यू हमारे पास, ये अगेन हम Ohm's law लिख के ये वैल्यू लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं RS की, which comes out to be 3.2 kilo ohm. इसके बाद to establish a DC voltage of 0.5 volt at the drain, we must select RD as follows. अब हमने RD की वैल्यू लगा फिर ओम्स लॉ से निकाल ली. तो ये सिस्टमेटिकली हम इस तरह चलते जाते हैं कि हमारे पास जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको हम लिख लें, दैट इज़ द गिवन डेटा, एंड देन वी राइट डाउन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. सो द गिवन डेटा एंड द डेटा द क्वांटिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, इनको हम इस सर्किट को देख के ओम्स लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ लगा के ये तीनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम ये भी याद रखिए कि करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो सैचुरेशन रीजन में इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का है वो स्क्वायर लॉ से एक्सप्रेस किया जा रहा है, और वो मैंने बिल्कुल टॉप की इक्वेशन में आपको वो इक्वेशन दोबारा रिप्रोड्यूस कर दी है. सो इन ए वे इट्स अ वेरी सिंपल एनालिसिस, डीसी एनालिसिस, that for a given data we can calculate the quantities that are required by using the current voltage relationship in the saturation region as well as in the triode region of the NMOS transistor as well.
तो जैसा कि ऑल अलोंग सारे लेक्चर्स में मैं बार बार आप लोगों को ये एम्फसाइज करती आई हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करती आई हूँ कि एक होता है किसी डिवाइस के ऑपरेट करने का मैकेनिज़्म या प्रिंसिपल, वो तो थियोरेटिकली हम एक्सप्लेन कर देते हैं बहुत क्लियरली, उनकी अप्रोप्रिएट इक्वेशंस भी हम डिराइव कर लेते हैं और कोट कर देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी उस वक्त डेवलप होती है जब आप न्यूमेरिकल डीसी एनालिसिस या इस स्मॉल सिग्नल एनालिसिस को खुद से टैकल करें उन प्रॉब्लम्स को. एंड इट हैज़ बीन माय रूटीन कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ सर्टेन टॉपिक मैं आपको एक या अबाउट हाफ ए लेक्चर डिवोट करती हूँ फॉर न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, न्यूमेरिकल एनालिसिस पे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से ही आपके एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो किसी भी टॉपिक के बारे में क्लियर होते हैं. सो दिस पर्टिकुलर एग्जांपल विच आई हैड सिलेक्टेड फॉर यू, ये एग्जांपल 4.2, ये जैसा मैंने कहा कि ये ओरिजिनल रेफरेंस से मैंने ली है और वही मैंने नंबर एग्जांपल का कोट किया है. तो इस एग्जांपल्स में इस एग्जांपल से हम रिक्वायर्ड चीज़ें जो डेटा हमें दिया हुआ है उसको यूज़ करके एंड देन करंट वोल्टेज के इक्वेशन को यूज़ करके हम जो वैल्यूज़ मांगी गई हैं वो दे सकते हैं. अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के बाद वी देन डिस्कस अनदर एग्जांपल व्हिच इज एग्जांपल 4.5 एंड नाउ again we assume the MOSFET operates in the saturation region and checking the validity of the operation. If not valid, solve the problem again for triode region. यानी आपको लॉजिकली क्या कहा गया है कि हमें मालूम है ट्रायोड रीजन की क्या कंडीशन होती है, हमें मालूम है सेचुरेशन रीजन की क्या कंडीशंस होती हैं. Since the triode region holds at lower values of the smaller values of VD, कहने से क्या मकसद है कि अगर ड्रेन वोल्टेज की वैल्यूज़ लेस हों, स्मॉल, अगर आप स्मॉल ड्रेन वोल्टेजेस अप्लाई करें, किससे स्मॉल, इफेक्टिव वोल्टेज से स्मॉल, यानी VG माइनस VT को थ्रू आउट द लेक्चर हम इफेक्टिव वोल्टेज कह रहे हैं. अगर ड्रेन वोल्टेज आपकी इफेक्टिव वोल्टेज से कम है, दैट मीन्स वी आर ऑपरेटिंग इन द ट्रायोड रीजन. ट्रायोड रीजन का क्या मतलब होता है, द ट्रांजिस्टर इज बिहेविंग लीनियरली एज अ रेजिस्टर और आपकी ID जो है वो इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन ड्रेन वोल्टेज फॉर ए गिवन कांस्टेंट गेट वोल्टेज. लेकिन जब आपकी ड्रेन वोल्टेजेस एक्सीड कर जाएं, बढ़ जाएं इफेक्टिव गेट वोल्टेज से, तो फिर हमारा सेचुरेशन रीजन में हम एंटर हो जाते हैं. सेचुरेशन रीजन में द ड्रेन करंट इज कंट्रोल्ड ओनली बाय गेट वोल्टेज और इस कैरेक्टरिस्टिक को हमने कई बार एम्फसाइज किया है दैट इट इज़ दिस कैरेक्टरिस्टिक प्रिसाइसली जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि MOSFET इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस इन द सेचुरेशन mode or in the saturation region of the IV characteristic curve. तो वही चीज़ मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं कि आप देखिए कि आप डिपेंडिंग कि गेट वोल्टेज के साथ और सोर्स वोल्टेज के आपके क्या रिलेशनशिप हैं. अगर गेट वोल्टेज आपकी लेस, इफ़ योर ड्रेन वोल्टेज इज स्मॉलर देन गेट वोल्टेज, देन वी आर ऑपरेटिंग इन द ट्रायोड रीजन. इफ़ योर ड्रेन वोल्टेज इज ग्रेटर देन योर इफेक्टिव वोल्टेज, देन वी आर वर्किंग इन द सेचुरेशन रीजन. तो चूंकि ये एग्जांपल्स हम सेचुरेशन रीजन में सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये वैलिडिटी देख के फिर हम करंट का रिलेशनशिप लिख लेते हैं. तो ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, ये पूरी आपको एक एग्जांपल दी हुई है और इस एग्जांपल में फिर हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. अगेन एज आई सेड कि depending upon the construction, depending upon the design of your circuit and MOS circuit, we can calculate the values of the voltages that are required to be determined. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हम इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट यूज़ करके ओम्स लॉ लगा के गेट वोल्टेज निकाल सकते हैं, which comes out to be about 5 volt in this example. तो referring to figure 423b, since the voltage at the gate is 5 volt and the voltage at the source is 6 ID times 6 ID volts, then we can write down the gate to source voltage in the following equation.
और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, अब मैं अगर इसको अस्यूम करूं कि वी आर ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन रीजन, तो ये मैंने ID और VG माइनस VT दैट इज इफेक्टिव वोल्टेज का स्क्वायर लॉ रिलेशनशिप दिखाया है, दैट इज वी आर ऑपरेटिंग इन दी सैचुरेशन मोड। तो ये सिस्टमेटिकली ये रिलेशंस लगा के ये मैंने फिर ड्रेन वोल्टेज निकाली विच इज about 7 volt. Since the drain voltage is greater than the effective voltage, the transistor is operating in the saturation region as was assumed initially. तो शुरू में जो मैंने आपको criterion बताया था for the solution of for the DC analysis of the transistor, whether in the triode region or in the saturation region, तो वो 3 assumptions हमने यही लिखी दी थी कि look at your gate voltage, or if the gate voltage is not given, it is required to be calculated. Calculate your gate voltage, determine your drain voltage, and then compare them and see which one is greater and which one is smaller. तो हम उससे फिर ये conclude कर सकते हैं कि हमारा transistor जो है is operating either in the saturation region, or whether it is operating in the saturation region or it is operating in the triode region. If the criterion does not satisfy, यानी criterion simple क्या है, look at the drain voltage and look at the effective voltage. If the drain voltage is smaller than the effective voltage, then go back again और आप फिर triode region की IV characteristic का relation use करें जो कि linear relationship होता है और उसमें square law नहीं होता. If drain voltage is greater than effective voltage, then use the square law equation जो कि टॉप में मैंने लिखी हुई है. तो इस तरीके से लॉजिकली हम DC एनालिसिस की तरफ प्रोसीड करते हैं. Now this is the third example again in the analysis and this is 4.7. यहाँ आपको अब एक कैस्केड नज़र आ रहा है कि दो हम 2 स्टेज हमने NMOS सिस्टम इस्तेमाल किया हुआ है. लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हमें एक अगर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होती हैं तो वो हम फिर दोनों ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को उसकी मदद से निकाल सकते हैं. तो इस ट्रांजिस्टर को मैं इस तरह करके रीराइट कर सकती हूँ एग्जाम्पल 4.7 के सर्किट्स को, और उसके बाद I can pursue the relationship for the calculation of this NMOS transistor और इसका DC analysis में निकाल सकती हूँ जो कि डिटेल में दोबारा उसी बुक से मैंने बोरो करके आपको एक पिक्चर इमेज में इसका सोल्यूशन दे दिया है. तो ये आप यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड पहले कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद try to understand and analyze how a different transistor behaves in different circumstances, that is applying different gate voltages and applying different drain voltages. Next, I would now, having completed the DC analysis, after giving you 3 different examples, then we can move on to the second topic of today's lecture, that is how we can construct or design an amplifier circuit using a MOSFET transistor. Now before I do that, मैं आपको 2 चीज़ें in the beginning explain करना चाहूँगी, and then of course they are already present. ये different slides में वही चीज़ें मैंने आपको दी हुई भी हैं for your permanent record, लेकिन पहले मैं उनको explain करना चाहूँगी. Now since we are interested in designing a linear amplifier, what is the basic definition of an amplifier, and then we can define a linear amplifier. A simple voltage amplifier or current amplifier is that we are increasing the input by a certain amplification factor, or in other words, your output that you get in the output circuit has been enhanced by a certain factor known as the amplification factor. अब जैसे NMOS के आपने बेसिक ऑपरेशन में देखा, बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज इन द ऑपरेशन में देखा कि हमारी गेट वोल्टेज से
कंट्रोल हो रही है ड्रेन करंट। यही ऑपरेशन था ना कि हम गेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। इफ़ वी वर कंसिडरिंग एन मॉस ट्रांजिस्टर यानी एन चैनल ट्रांजिस्टर, तो हमने गेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज दी और फिर हमने ड्रेन को वेरिएबल वोल्टेजेस देके, पॉजिटिव वेरिएबल वोल्टेजेस देके, देन वी वर मैनिपुलेटिंग या कंट्रोलिंग द ड्रेन करंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन गेट वोल्टेज। और ऑफ कोर्स उसमें 3 मोड ऑफ ऑपरेशन हमने डिफाइन किए थे। द कट ऑफ मोड व्हेन द गेट वोल्टेज इज 0 और बिलो द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, देन वी हैड डिफाइंड द लीनियर रीजन एंड देन वी हैड डिफाइंड द सैचुरेशन रीजन। तो इन एनी केस आपकी करंट जो है, जो आपको ड्रेन में मिल रही है, दैट यू आर गेटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड गेट वोल्टेज। अब अगर आपको एम्पलीफायर सर्किट में अगर एक आपको लीनियर रिलेशनशिप चाहिए है, तो फिर हमें ये देखना होगा कि हम किस मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया एनमॉस के 3 मोड ऑफ ऑपरेशन हैं, द कट ऑफ मोड, द लीनियर रीजन विच इज़ द ट्रायोड रीजन एंड द सैचुरेशन रीजन। अब जाहिर है कट ऑफ मोड में तो हम नहीं ऑपरेट करना चाहेंगे, बिकॉज इन द कट ऑफ मोड ऑपरेशन इवन दो यू आर अप्लाइंग द गेट वोल्टेज, यू आर नॉट गेटिंग एनी ड्रेन करंट। उसके बाद आपका ट्रायोड रीजन है एंड देन वी हैव अ सैचुरेशन रीजन। तो वी वुड लाइक टू ऑपरेट इन द सैचुरेशन रीजन, क्योंकि सैचुरेशन रीजन में आपकी करंट जो है वो ड्रेन वोल्टेज से नहीं कंट्रोल हो रही, बल्कि सिर्फ गेट यानी इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल हो रही है। तो इन शॉर्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि ट्रायोड रीजन में आपको दोनों वोल्टेजेस आपकी ड्रेन करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आपकी ड्रेन करंट इंक्रीज होती है ड्रेन वोल्टेज के साथ भी और गेट वोल्टेज के साथ भी। लेकिन सैचुरेशन रीजन में हमारी ड्रेन करंट जो है वो सिर्फ गेट वोल्टेज के साथ कंट्रोल हो रही है, यानी इनपुट आपकी गेट वोल्टेज है और आउटपुट आपकी ड्रेन करंट है। सो इट इज़ लाइक द ट्रांजिस्टर इन द सैचुरेशन इज बिहेविंग एज अ ट्रांस कंडक्टेंस डिवाइस। तो ये प्रिंसिपल है इन सिंपल वर्ड्स किसी मॉसफेट को एक एम्पलीफायर, किसी मॉसफेट से एक एम्पलीफायर सर्किट डिज़ाइन करने का। फिर आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वी वुड ऑल्सो नॉट ओनली वी वांट एन एम्पलीफायर, वी ऑल्सो वांट the circuit to behave as a linear amplifier। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। In this lecture, that is in today's lecture, we will study the use of the MOSFET transistor for the design of an amplifier circuit. The basis for this important MOSFET application is that in the saturation region, the MOSFET acts as a voltage control current device। ये अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ड्रेन करंट सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करता जब हम सैचुरेशन रीजन में होते हैं, क्योंकि गेट की वोल्टेज बढ़ाने से आपकी ड्रेन की करंट बढ़ रही है, ड्रेन वोल्टेज डज नॉट प्ले एनी रोल एट ऑल, और ये होता है ओनली इन द सैचुरेशन रीजन। सो आई राइट डाउन दैट इन द सैचुरेशन रीजन the gate voltage controls the drain current, so it's a voltage controlled current source device. So MOSFET in the saturation region can be called as a voltage controlled current device. Changes in the gate voltage give rise to changes in the drain current। ये भी मैंने explain कर दिया कि saturation region में चूंकि VD कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं, VD के ड्रेन वोल्टेज के चेंज करने से ड्रेन करंट नहीं चेंज हो रही, सिर्फ गेट के चेंज होने से, गेट वोल्टेज चेंज होने से ड्रेन करंट चेंज होती है। सो चेंजेस इन द गेट वोल्टेज गिव राइज टू चेंजेस इन द ड्रेन करंट ID and drain voltage does not change the current. Thus the MOSFET operating in the saturation mode can be used to implement a ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, यानी इनपुट सर्किट में आप गेट की आप वोल्टेज चेंज करते हैं, आउटपुट सर्किट में आपको करंट अकॉर्डिंगली मिल रही है। सो इस ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर सर्किट, ये उसका एक वेरी सिंपल कंसेप्चुअल सर्किट है एंड इज बिहेविंग एज अ
the amplifier. This is one of the analog applications of the MOSFET transistor, that is the current rises linearly, the drain current rises linearly with respect to the changes in the gate voltage. How does ID respond to changes in VGS? This we shall discuss in the next few slides. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनपुट जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हम गेट को अप्लाई कर रहे हैं. Now this slide illustrates the concept of transconductance in an NMOS. So we notice that in the saturation mode, the transistor, NMOS transistor, is behaving as a transconductance amplifier. That is, we are controlling the output current, which is the drain current, in response to the applied gate voltage. And this slide shows you conceptual circuit of the transconductance amplifier. And you can see from this circuit that in the saturation region, the NMOS transistor is behaving as an, we can utilize the transconductance amplifier as for analog purposes. तो यहाँ आपने देखा कि हमने एक इनपुट अप्लाई की हुई है टू द गेट, और आउटपुट जो है वो हम ड्रेन पर इन द फॉर्म ऑफ ड्रेन करंट कलेक्ट कर रहे हैं, एंड द यूजुअल सिंबल्स आर ऑल्सो शोन in this slide number 18. तो इस transconductance को अब हम इस तरह explain कर देते हैं that for MOSFET transconductance is the change in the drain current. It is the ratio of the drain current to the effective voltage, और effective voltage को मैं पहले define कर चुकी हूँ. So for the MOSFET, the transconductance is defined as the change in the drain current divided by the small change in the gate to source voltage with a constant drain to source voltage. Typical values for this transconductance GM for a small signal MOSFET transistor are 1 to 30 millisiemens. तो Siemens जो है वो एक new unit है for measuring transconductance instead of mho. So the transconductance for the MOSFET can be expressed as 2ID over V effective, where ID is the DC drain current and V effective is the effective voltage, which is the difference between the gate voltage and the threshold voltage. Gate voltage को NMOS transistor में amplifier circuit में हम बाज़ दफ़ा bias point भी कहते हैं. So gate voltage minus the threshold voltage is defined as the effective voltage. तो ये simple relationship, that is GM is equal to 2ID over VF, defines the gives you the transconductance for the transistor which is going to be utilized as an amplifier circuit. अब ये second part आता है मेरे introduction का. Let me go back again so that we understand logically what is happening. इस slide 17 में मैंने आपको ये बताया कि हम अगर ट्रांजिस्टर को, that is NMOS ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराएं saturation region में, तो in the saturation region the drain current does not depend on the drain voltage, rather it is controlled by the gate voltage. So as we increase the gate voltage, the drain current increases. So that's the first step. And the second step is that since we are operating now in the saturation region, so let's write down the current voltage relationship in the saturation region. तो यहाँ आप देख सकते हैं equation 420 में the drain current ID varies as the square of the effective voltage which is VG minus VT. तो ये एक बड़ी typical equation है, square law equation है for the current voltage characteristic in the saturation region. तो यहाँ पे problem क्या आ रहा है कि हमें एक लीनियर एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है, एक लीनियर रिलेशनशिप लेना है. तो किसी तरह हम कोई ऐसा तरीका ढूंढें, कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढें कि इस स्क्वायर लॉ को के बजाय हम, यानी एक नॉन लीनियर विच इज स्क्वायर लॉ के बजाय कोई राउंड अबाउट वे ढूंढ के हम एक लीनियर आईडी की करंट वोल्टेज रिलेशनशिप का कोई लीनियर रिलेशनशिप अचीव कर सकें. और लेकिन
ये जो रीजन है, सैचुरेशन रीजन है, दैट इज characterized by the non linear, that is the square relationship. So let's see how we tend to obey, how we tend to overcome this problem. Now 420 has to be valid. The equation 420, that is the relationship of the drain current with the effective voltage, has to be valid, because that is the current voltage relationship that we derived in our lecture number 28 as well as in lecture number 29. तो फिर अब हम इस स्क्वायर लॉ इक्वेशन को यूज करके हम आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हमने एम्पलीफायर डिजाइन करना है, तो लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड. Since we are interested in linear amplification, that is in amplifiers whose output signal, which is output signal हमारा drain current है, is linearly related to their input signal, that is the gate voltage, we will have to find a way around the highly non-linear relationship of ID to VGS. So इस पूरी ट्रांसपेरेंसी को, स्लाइड नंबर 20 को हम एक सिंपल नुक्ते में इस तरह बयान कर सकते हैं. कैसे? Equation 420 gives you a non-linear, that is a square dependence of the current on the voltage. That is, the drain current ID varies as square of the effective voltage. लेकिन linear amplifier डिज़ाइन करने के लिए या इस saturation region में अगर हम एक एम्पलीफायर को ऑपरेट कराएं तो हमें तो ID और VD का लीनियर रिलेशनशिप चाहिए. सो वी वुड लाइक टू इवॉल्व अ मैकेनिज्म के जिसके तहत हम रिलेशनशिप हमारा यही करंट का रहे, लेकिन समहाउ द वेरिएशन वुड लुक लाइक टू बी लीनियर. तो जो टेक्निक हम यूटिलाइज करते हैं इस हर्डल को ओवरकम करने के लिए, ये पिछली स्लाइड में जो मैंने दिखाया कि 420 के रिलेशनशिप को किसी तरह लीनियर एम्पलीफायर डिज़ाइन करने के लिए अगर हम यूज़ करें, तो द टेक्निक दैट इज़ यूटिलाइज्ड टू गेट अ लीनियर एम्पलीफायर फ्रॉम अ फंडामेंटली नॉन लीनियर डिवाइस इज़ to use a DC biasing for the MOSFET and to operate at a certain appropriate gate voltage, and a corresponding drain current will be obtained, and then superimposing the voltage VGS to be amplified on the DC bias voltage VGS. तो इसका एक टेक्निक, जो एक सिंपल टेक्निक हमने सोची, इवॉल्व की, वो ये है कि आप एक डीसी बायस जैसे कि हम देते रहे हैं, हम एक डीसी वोल्टेज VGS देते हैं और आपको एक डीसी करंट ID मिलती है. एंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन द गेट वोल्टेज एंड ड्रेन करंट शुड बी सच कि हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है. एंड फिर चूंकि एम्पलीफायर सर्किट ट्रेडिशनली कन्वेंशनली इन द एम्पलीफायर सर्किट्स वी हैव टू सुपर इम्पोज एन AC सिग्नल ऑन दी DC बायस. तो ये DC बायस के ऊपर हम DC, जैसे हम एक नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं कि अप्लाई अ गेट वोल्टेज एंड ऑब्टेन, अप्लाई अ DC गेट वोल्टेज एंड ऑब्टेन अ DC ड्रेन करंट. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है एम्पलीफायर सर्किट डिज़ाइनिंग में कि अब आप उस DC गेट वोल्टेज के ऊपर एक AC सिग्नल इम्पोज करें. और जैसे कि हमारी कन्वेंशन रही है कि जो अपर केस लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं DC वोल्टेजेस एंड DC करंट्स के लिए, और स्मॉल यानी लोअर केस लेटर्स हम यूज़ करते हैं AC सिग्नल्स के लिए. तो आप दोनों को देख रहे होंगे कि मैंने दोनों को मैंने दोनों वोल्टेजेस को डिफरेंशिएट किया है बाय यूजिंग दी, ये आप देखिए कि ये VG में आप देख रहे हैं, ये एक कैपिटल लेटर्स है बोथ फॉर दी वोल्टेज एज वेल एज गेट टू सोर्स सिंबल्स के DC वोल्टेज है, और फिर ये जो स्मॉल लेटर्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं AC. सो ऑन टॉप ऑफ अ DC, जो कि मैं एक नॉर्मल ऑपरेशन के लिए बायस करती हूँ गेट को, ऑन टॉप ऑफ दिस DC नाउ आई सुपर इम्पोज एन AC सिग्नल. अब क्राइटेरियन ये है, इस टेक्निक का क्राइटेरियन ये है कि जो भी आप यूज़ करें AC सिग्नल, दैट शुड बी अ स्मॉल AC सिग्नल. तो ये मैंने लिखा हुआ है कि जो टेक्निक हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं DC
अपने NMOS ट्रांजिस्टर को एक लीनियर एम्पलीफायर में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि हमें मालूम है इक्वेशन 420 हमें ये बता रही है कि करंट और वोल्टेज की स्क्वायर लॉ रिलेशनशिप है। तो जो टेक्निक हमने यूज़ की है वो ये कि ठीक है, आप ऑपरेट कराइए नॉर्मल तरीके से, गेट को एक DC वोल्टेज दें, फिर उसके ऊपर सुपर इम्पोज करें AC सिग्नल, जो कि रिक्वायरमेंट होती है फॉर कंस्ट्रक्टिंग और डिज़ाइनिंग एन एम्पलीफायर सर्किट। मगर एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ये जो AC गेट वोल्टेज आपने देनी है ये एक स्मॉल वोल्टेज होनी चाहिए। However, first we will discuss the large signal operation of a MOSFET amplifier, and we will do this by deriving the voltage transfer characteristic of a commonly used MOSFET amplifier circuit. Having said that, कि एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग में दो चीज़ें अब हमारे सामने आ गई। या लेट मी गो बैक अगेन टू दिस स्लाइड कि इस तरह हम सिस्टमेटिकली प्रोसीड कर रहे हैं दैट वी आर ऑपरेटिंग दी NMOS ट्रांजिस्टर इन द सैचुरेशन रीजन। उसके बाद इक्वेशन 420 को देखिए। सैचुरेशन रीजन में हमें मालूम है कि ड्रेन करंट वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव वोल्टेज, लेकिन ये समहाउ हमने ट्रांजिस्टर को इस तरह ऑपरेट कराना है कि हमें एक लीनियर रिलेशनशिप मिले ID और गेट वोल्टेज में। तो इक्वेशन 420 को समहाउ हमने रिड्यूस करना है, इस तरह कोई ऐसी टेक्निक इवॉल्व करनी है कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप आए। वो टेक्निक हमने क्या चूज़ की, जो कि हमने पहले भी एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग में हमने ये टेक्निक बहुत डिटेल में पढ़ी थी, that we bias the transistor, any transistor, whether it is a bipolar junction transistor or now in this case NMOS transistor with a DC bias। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में वो DC बायस इमिटर बेस्ड जंक्शन की फॉरवर्ड बायस होती थी। आज के लेक्चर में हमें मालूम है कि हमारी MOSFET ट्रांजिस्टर्स में जो DC बायस है दैट्स द DC गेट वोल्टेज। तो आप DC गेट वोल्टेज से ट्रांजिस्टर को बायस कीजिए, आपको एक DC करंट इन रिस्पॉन्स ID मिलेगी, यानी the device now is behaving in the saturation region, the NMOS device is behaving as a transconductance device। अब इसको एम्पलीफायर सर्किट बनाने के लिए on top of this DC gate voltage we superimpose an AC gate voltage। तो DC gate voltage और AC gate voltage दोनों के मैंने सिंबल अलग अलग लिखे हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी स्मॉल। मगर स्मॉल सिग्नल अप्लाई करने से पहले हम इसका एक लार्ज सिग्नल ऑपरेशन पहले स्टडी कर लेते हैं एम्पलीफायर डिज़ाइन करने के लिए, एंड देन वी विल डिराइव द वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमनली यूज्ड MOSFET एम्पलीफायर सर्किट। तो लार्ज सिग्नल ऑपरेशन में हम एक ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व की इक्वेशन ड्राइव करके फिर हम आगे स्मॉल सिग्नल पर चले जाते हैं। फ्रॉम द वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व वी विल बी एबल टू सी द रीजन ओवर विच द ट्रांजिस्टर कैन बी बायस्ड टू ऑपरेट एज अ स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो ये चार बड़े लॉजिकल स्टेप हैं जिससे कि हम एक NMOS ट्रांजिस्टर को एक लीनियर एम्पलीफायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। सो लेट मी रीइटरेट वंस अगेन फॉर द थर्ड और फोर्थ टाइम कि सैचुरेशन रीजन में वी नो दैट द करंट वेरीज विद द वोल्टेज एज अ स्क्वायर लॉ। In order to design an amplifier circuit, we have to superimpose an AC signal to the gate, और गेट पर आपने DC सिग्नल पहले भी दिया हुआ है, और ये AC सिग्नल शुड बी स्मॉल। बट फॉर DC एनालिसिस, बट फॉर ट्रांजिस्टर ऑपरेशन वी हैव टू डिफाइन सर्टन ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने के लिए पहले हम लार्ज सिग्नल एनालिसिस करते हैं, और उस लार्ज सिग्नल एनालिसिस के लिए लास्ट स्टेप क्या है कि आप ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कीजिए, वहाँ से ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन derive करें, and then those equations could be utilized for small signal amplifier as well. So from the voltage transfer characteristic we will be able to see the region over which the transistor can be biased to operate as a small signal amplifier NMOS device।
तो सबसे पहले फिर हम प्रोसीड करते हैं अब लार्ज सिग्नल ऑपरेशन के लिए। तो ये 4 हमने एक लॉजिकल स्टेप्स एक्सप्लेन किए बड़ी क्लियरली कि किस तरह हम एनमॉस ट्रांजिस्टर को जो कि सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा हो, वी कैन डिज़ाइन a linear amplifier circuit by superimposing a small AC signal। लेकिन small AC signal की values establish करने से पहले ज़रूरी है कि हम इसको एक large signal analysis को study कर लें। So that is my current slide 22, which explains the large signal analysis of the NMOS transistor in order to obtain the transfer characteristics of the same device. Now I have listed 3 figures, A, B and C. Figure A, let me go back to move forward to figure A first. This is the conceptual circuit for the operation of the MOSFET as an amplifier. तो जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि किसी भी एम्पलीफायर सर्किट की डिज़ाइनिंग के लिए, चाहे वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो या मॉसफेट ट्रांजिस्टर हो, ये देखिए we require both the biases. This is your standing DC bias. DC bias की अगेन डेफिनेशन ये है कि डीसी बायस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड लेटर से, कैपिटल लेटर से। सो दिस इज़ द गेट टू सोर्स वोल्टेज, और जो एसी सिग्नल है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉजिटिव गेट वोल्टेज हम दे रहे हैं गेट को, डीसी वोल्टेज टू बायस द ट्रांजिस्टर, और फिर एम्पलीफायर में इस एनमॉस ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर में कन्वर्ट करने के लिए उसके ऊपर एक हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं स्मॉल एसी सिग्नल। तो ये एसी सिग्नल है, symbolic representation of the DC gate source, so DC bias and AC bias। ये हमारा एक conceptual ट्रांजिस्टर है, NMOS ट्रांजिस्टर, जिसको हमने both DC as well as AC बाइसिंग दी हुई है टू द गेट। तो ये आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। दिस इज़ नाउ योर टोटल इनपुट पोर्ट। ये देखिए, ये आपकी टोटल इनपुट वोल्टेज यहाँ आ रही है, और आपको यहाँ आपकी ड्रेन पर आपको ड्रेन करंट, ड्रेन नोड पर आपको ड्रेन वोल्टेज मिल जाती है, और ये हम एक सोर्स है, वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स है जिससे ड्रेन वोल्टेज कंट्रोल हो रही है, एंड दिस इज़ आवर एसी आउटपुट। तो ये देखिए, ये जो सिंबल है, अब मैं फिर एम्फसाइज करूँगी ऑन दी सिंबल्स कि V जो है वोल्टेज के लिए मैंने स्मॉल लेटर लिया है, दैट इज़ AC, and D is now drain. So this is the total voltage. This is the total voltage signal that you obtain across this resistor RD. तो इस तरह इस सिंपल हमने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया, एक सिंपल सर्किट आपके लिए बनाया है, which is converting this transistor, this simple transistor, as this simple NMOS transistor as an amplifier by superimposing a small DC and then obtaining an output VD across this resistor RD. तो अब आप देखिए कि हम ये नेक्स्ट सर्किट भी मैं आप दिखा देती हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि ये वही बेसिक स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कि यहाँ पर दोनों वोल्टेजेस मैंने अब कॉमन कर ली हैं, दी गेट वोल्टेज एज वेल एज दी सोर्स वोल्टेज। दिस इज़ दी ऑफ कॉमन सोर्स, यानी कॉमन सोर्स से सिंपली मुराद है कि जो मेरा सोर्स इलेक्ट्रोड है दैट इज़ ग्राउंडेड एंड बिटवीन गेट, सो वी आर अप्लाइंग ए वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, दूसरी वोल्टेज हमारी ड्रेन एंड सोर्स के दरमियान है। सो दिस इज़ सम टाइम नोन एज कॉमन सोर्स एम्पलीफायर डिज़ाइन। तो ये वही डिज़ाइन सर्किट है जो कि मैंने अभी आपको फिगर ए में दिखाया, ये फिगर बी है। फिगर बी में उसी सर्किट की दिस सर्किट हैज़ बीन reproduced again on the left। तो आप देख रहे हैं कि अब मैं टोटल जो हमारी टोटल इनपुट वोल्टेज जो है विच इज़ अ सम ऑफ, ये देखिए मैं आपको लिख के बताऊं कि टोटल वोल्टेज जो है हमारे पास एक वोल्टेज है, इफ़ आई कैन राइट अगेन, ये देखिए जो एक वोल्टेज है मेरे पास
एक मेरे पास ये वोल्टेज है, आई गो बैक अगेन टू दिस, I have one voltage which is the DC voltage and I have a second voltage which is the AC voltage. तो अब मेरी total input voltage जो है वो total input voltage मैं इस तरह represent कर रही हूँ. Small letter indicates the total AC voltage. GS represent that it is a total voltage, superimposed voltage, the DC plus AC component. DC plus the AC component, ये हमारी total input voltage है. So the total input voltage now consists of two components, the DC gate component and the AC gate component. The total AC gate voltage is now input. और इसी तरह ड्रेन पर जो ड्रेन पे जो मुझे ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज मैं मेजर कर रही हूँ, दैट्स द आउटपुट वोल्टेज. तो इस चीज़ में इस लेफ्ट वाली डायग्राम में मैंने दोनों सिंबल आपको दिखा दिए कि इनपुट वोल्टेज विच इज़ गिवन एट द गेट एंड द आउटपुट वोल्टेज विच इज़ कलेक्टेड एट द ड्रेन. ये फिर ID वर्सेस VD है. तो बिल्कुल उसी मुनासबत से ये देखिए, ये देखें ID इज इक्वल टू VO. ये बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी हुई है. VO इज़ नाउ योर आउटपुट वोल्टेज विच इज़ एट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स एंड ID इज़ द करंट. तो ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है विद रिस्पेक्ट टू द कंसेप्चुअल सर्किट दैट वी हैव डिज़ाइंड. तो ये हमारा सर्किट है. इस सर्किट के मुताबिक जो हमने ग्राफ निकाला है, प्लॉट किया है ID वर्सेस VD कर्व्स का, और इससे फिर हम ऑब्टेन करेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ शोन इन दिस फिगर C. फिगर C क्या है? इट्स अ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक शोइंग ऑपरेशन एज एन एम्पलीफायर बायस्ड एट point Q. Before I go into the detail of the construction, that is the various regions of this curve, let me go back to my slide again. So in order to proceed the large signal operation, in order to evaluate the transfer characteristic of the NMOS transistor, जिसमें कि अब हमने ट्रांजिस्टर को as an amplifier circuit डिज़ाइन किया है by superimposing a small AC signal, लेकिन पहले हम उसका लार्ज सिग्नल एनालिसिस समझते हैं. उसके लिए मैंने 3 फिगर्स आपको क्लियरली दिखाई. वन इज़ द conceptual basic structure of the MOSFET, commonly used amplifier, the common source circuit और the ground source. तो इसमें चूँकि हमने सोर्स को ग्राउंड किया हुआ है, गेट को हम वोल्टेज दे रहे हैं बोथ DC as well as AC, और ड्रेन को हम सिर्फ DC वोल्टेजेस दे रहे हैं. चूँकि सोर्स इस बाइसिंग में कॉमन है, therefore this type of circuit is known as common source circuit or the ground source circuit. फिगर B में मैंने आपको क्या बताया था? The graphical construction to determine the transfer characteristics of the amplifier circuit of the circuit which is shown in figure A. And the figure C is the transfer characteristic themselves, जो कि हम evaluate करते हैं 426B की curve से, showing the operation as an amplifier biased at point Q. ये क्वेसेंट पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने पहले भी डिटेल में स्टडी किया था जब हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में BJTs में जब हम एम्पलीफायर के तौर पे BJT को स्टडी कर रहे थे. सो दिस इज़ नाउ द इम्पॉर्टेंट स्लाइड. सो 25 slide number 25 thus depicts the utilization of the MOSFET as an amplifier circuit. तो इस ट्रांजिस्टर में आप देखिए, इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं. जैसे हमने पहले कहा था, वी हैव प्लॉटेड द इनपुट, वी हैव प्लॉटेड द आउटपुट वोल्टेज VO as a function of the drain voltage VDD. तो आउटपुट वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज में अब आप रिलेशनशिप देखिए, बिकॉज वी ऑल्सो हैव लोड रजिस्टर RD in output circuit between the drain at the drain electrode. So there will be a distribution of the total output voltage. There will be a distribution of the voltage at the
gate source terminal as well as the load RD. So we are saying the transfer characteristic showing operation as an amplifier biased at point Q. तो यहाँ आप देखिए कि तीन सेक्शंस हमें इस ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप मैग्नीफाई करके देखें तो हमें तीन डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं. We have marked a segment XA known as the cutoff region segment, and then the linear, so-called linear segment, which is AQB, and that region is known as the saturation region segment, and then we have the last, which is BC, the triode region section. So going from bottom towards up, from higher values of VDD, we have the triode region, and then we have the linear region, and then we have the cutoff region. This is in opposite to the आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो कि हमने लेक्चर नंबर 29 में डिस्कस की थी. अब इसमें देखिए कि हम ट्रांजिस्टर को देयरफॉर वी कैन ऑपरेट एनीवेयर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जैसा कि हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स में भी स्टडी किया था कि हम मिड पॉइंट ले लेते हैं Q को, एंड Q एज यू रिकॉल इज डिफाइंड एज द क्वेसेंट पॉइंट और द क्वेसेंट ऑपरेटिंग पॉइंट. तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप एट Q इज डिफाइंड एज द वोल्टेज गेन. तो ये एक टाइम वेरिंग सिग्नल यानी AC सिग्नल जब हम सुपर इम्पोज करें एट द गेट इन एडिशन टू द DC बायस, तो आपको इस तरह की आउटपुट हम ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि मैंने आपको दिखाई है. सो दिस इज योर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक विच वी ऑब्टेन्ड if we see again from this characteristic curve, और ये characteristic curve हमने plot की थी इस simple MOSFET amplifier circuit से. So this is your typical MOSFET amplifier circuit. These are on the right hand side are the ID VD characteristics, and this is your transfer characteristic, and then we can write down equations, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हम सेचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर के एनमॉस ट्रांजिस्टर के हम सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करना चाहेंगे, क्योंकि इस सेचुरेशन रीजन है दैट वुड कॉरस्पॉन्ड टू बिल्डिंग एंड लीनियर एम्पलीफायर सर्किट. तो ये रिप्रोड्यूस कर रही हूँ, यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन अगेन ऑफ द सेचुरेशन कंडीशंस जो कि हमने लेक्चर 29 और 30 में भी स्टडी की थी. The voltage, what defines or characterizes the saturation region of an NMOS transistor? वो ये तीन conditions है. किस region को हम IV characteristic के, NMOS की IV characteristic के किस region को हम saturation region कहते हैं. तो हम जब gate voltages हमारी threshold voltage से ज़्यादा हो, ये criterion, in fact this is the most essential criterion for the operation of a transistor in any case, चाहे DC biases आप लगा रहे हों या आप amplifier circuit की डिज़ाइनिंग कर रहे हों, तो गेट को जो हमने voltages देनी है they have to be in any case greater than the threshold voltage. तो ये तो एक बाइसिंग की पहली कंडीशन या रिक्वायरमेंट हो गई. उसके बाद ये है सेचुरेशन रीजन में हमें मालूम है, saturation region में we know that drain voltage has to be greater than the effective voltage. तो अगर ड्रेन वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज से ज़्यादा हो, और इफेक्टिव वोल्टेज की डेफिनेशन हम कई बार दे चुके हैं, इट इज़ सिंपली VGS माइनस VT जो कि इक्वेशन नंबर 2 है फ्रॉम द टॉप. तो ड्रेन वोल्टेज सेचुरेशन रीजन में ग्रेटर देन इफेक्टिव वोल्टेज होती है और गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड से बड़ी होनी चाहिए. तो ये दो बायस रिक्वायरमेंट हैं गेट के लिए और ड्रेन के लिए जो कि सेटिस्फाई करती हैं सेचुरेशन रीजन की रिक्वायरमेंट को. एंड देन व्हेन वी गो ऑन टू इंक्रीज द ड्रेन वोल्टेज, तो आपको अगर याद हो तो चूँकि हमारी एक पिंच ऑफ इफेक्ट शुरू हो जाता है एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द गेट वोल्टेज एज वेल एज द ड्रेन वोल्टेज. क्या चीज़ हो रही होती है गेट वोल्टेज के बढ़ाने से? हमारे डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रहा होता है और हमारी चैनल विड्थ एंड चैनल विड्थ भी इंक्रीज हो रही होती है. तो चूंकि ये वोल्टेज हम ड्रेन पे अप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू गेट,
तो जो पिंच ऑफ इफेक्ट है वो ड्रेन के करीब जाके होता है। तो ड्रेन वोल्टेज जब आपकी बढ़ जाती है इफेक्टिव वोल्टेज से, तो फिर एक सेकंड क्राइटेरियन सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, वो होता है पिंच ऑफ इफेक्ट, कि when the drain voltage becomes quite large, how large? Larger than the effective voltage, then the depletion region pinches off at the drain terminal itself, यानी totally आपके block हो जाती है electron current. So drain current is controlled only by GS. तो pinch off पर फिर drain current हमारी जो है वो इस square law से कंट्रोल होती है, जो मैंने आपको शुरू में भी ये इक्वेशन दिखाई थी। सो ड्रेन करंट इज दस इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्रेन वोल्टेज एंड बिहेव्स एज एन आइडियल करंट सोर्स। तो अब ये आप के लिए मैंने एक काइंड ऑफ समरी रिप्रोड्यूस कर दी है सैचुरेशन रीजन की किसी भी मॉसफेट ट्रांजिस्टर के लिए, जिसको ये वो कंडीशंस हैं जो कि अब मैंने यूटिलाइज करनी है फॉर द डेवलपमेंट और डिजाइनिंग ऑफ एन एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग ए मॉसफेट ट्रांजिस्टर। तो मॉसफेट ट्रांजिस्टर को जब हमने समरी फिर मैं रिपीट करने लगी हूँ कि मॉसफेट ट्रांजिस्टर को अब मैंने एक एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करना है। आई विल यूज़ द सैचुरेशन रीजन, और ये स्लाइड 26 जो है ये रिक्वायरमेंट है, ये समरी है सैचुरेशन रीजन को डिफाइन करने की। सैचुरेशन रीजन क्या होता है? जिसमें गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो, ड्रेन वोल्टेज जो है वो इफेक्टिव वोल्टेज से ज़्यादा हो। ये दो बाइसिंग कंडीशंस दे देन लीड to the pinch off effect, and lastly we can express the current voltage relationship, और ये current voltage relationship gives you a very interesting implication, और वो क्या है कि इस point पर आके saturation region में the device is behaving as a ideal current source, that is you vary the gate voltage and the drain current would vary accordingly. तो इस पॉइंट पे पहुंच के सैचुरेशन रीजन के therefore we can then develop a region, we can find out a region कि जहां आप एक Q पॉइंट चूज करके फिर NMOS ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम प्लॉट करें, चूँकि अभी मैंने कहा कि when in saturation region, इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड को दोबारा समझिए। When in saturation region we have the biasing conditions given by the top point biasing conditions, and then the consequence of these biasing condition is leads us to the pinch off effect, and at the pinch off effect the current is expressed by the square law given by this equation, and the implication is the outcome is that the device is working as a voltage controlled, the gate voltage controlled current device. तो अब हम प्लॉट कर सकते हैं, चूँकि आपकी ड्रेन वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ गेट वोल्टेज पे एट दिस पॉइंट डिपेंड कर रही है, ड्रेन की वोल्टेज से वो इंडिपेंडेंट हो गई है। देयरफॉर ऑन द राइट हैंड साइड आई दस प्लॉट एग्जैक्टली द सेम ग्राफ जिसकी मैंने अभी स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट क्या थी? वो स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट क्या है? द ड्रेन करंट इज दस कंट्रोल्ड बाय गेट वोल्टेज। लेट मी रिपीट अगेन कि ड्रेन करंट ID जो है वो सिर्फ आपकी गेट वोल्टेज VG से कंट्रोल हो रही है, से वेरी हो रही है, और ड्रेन वोल्टेज से वो इंडिपेंडेंट हो गई है। वही चीज़ मैं फिर प्लॉट कर रही हूँ स्लाइड 27 में ऑन द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे मैंने प्लॉट की हुई है देयरफॉर द ड्रेन वोल्टेज इन द यूनिट्स ऑफ मिली एम्पियर, I'm sorry, the drain current in the units of milliampere versus the gate voltage in the units of volt, और threshold voltage जहाँ से current take, यानी threshold voltage का logically definition यही है, it is that voltage, minimum voltage applied to the gate जिस पे जाके आपको कुछ a significant amount of drain करंट मिलती है। वो मैंने आपको इस वक्त 1 वोल्ट दिखाई है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक एग्जांपल मैंने ले ली इज़ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के बाद अब जाके आपकी
जब आप VG 1 वोल्ट के बियॉन्ड बढ़ाएं, यानी VG गेट वोल्टेज जब आपकी 1 वोल्ट से ज़्यादा हो, फिर आपको ड्रेन करंट मिलनी शुरू होती है। और फिर जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाते हैं, इस ग्राफ में मसलन, इस एग्जांपल में मसलन 4 वोल्ट्स के बियॉन्ड जब मैं बढ़ाऊं तो आपको तकरीबन 4 वोल्ट गेट वोल्टेज पर आपको रफली 2 मिली एम्पियर ड्रेन करंट मिल रही है। और चूंकि हम सैचुरेशन रीजन में हैं तो मैंने सैचुरेशन की जो कंडीशन है बेसिक वो भी लिख दी है। वो क्या है कि VDS शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस VT। अब और से आप इन वोल्टेज के सिंबल्स को देखिए, तो ये अब हमने एम्पलीफायर यानी AC सिग्नल के सिंबल लिखे हैं, क्योंकि मैंने अब एम्पलीफायर डिज़ाइन करने के लिए सुपर इम्पोज की हुई है AC वोल्टेज भी DC वोल्टेज के ऊपर। तो ID-VG कैरेक्टरिस्टिक फॉर एन एनहांसमेंट टाइप NMOS ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन। और इस एग्जांपल में जो मैंने पैरामीटर कोट किए हैं वो ये है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट के लिए है, एंड KN and WL विच इज़ नोन एज द प्रोसेस कंडक्टेंस पैरामीटर, वो उसकी वैल्यू भी मैंने आपको दी हुई है। एंड द बिहेवियर ऑफ द करंट इज स्क्वायर लॉ ऑफ ID एंड वर्सेस VG कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जो कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाई थी। ये आपको स्क्वायर लॉ वेरिएशन नज़र आ रहा है ID और VG के बीच में, वही तीनों चीज़ें मैंने फिर आपको लिस्ट कर दी हैं। अब ये एक रिकैप यानी एक समरी मैंने दी है ट्रांसफ़र फंक्शन की। ऑन दी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड आपको ID वर्सेस VD यानी IV कैरेक्टरिस्टिक नज़र आ रही हैं NMOS ट्रांजिस्टर की, और मिडल में आपको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक नज़र आ रही हैं, और टॉप अगेन राइट पे मैंने ID और VG की कैरेक्टरिस्टिक दिखा दी हैं। तो ये इस तरह हमने तीनों स्टेप सिस्टमेटिकली करके अब हमने एक क्यू पॉइंट इस्टेब्लिश कर लिया है, जो कि आपको सेंटर वाली बॉटम सेंटर में नज़र आ रहा है कि इस क्यू पॉइंट पे जब हम ऑपरेट कराएं NMOS ट्रांजिस्टर के जो कि सैचुरेशन रीजन में भी ऑपरेट कर रहा है, तो इट वुड बिहेव एज एन एम्पलीफायर सर्किट। तो अब हम कंक्लूड करते हैं लार्ज सिग्नल ऑपरेशन को कि ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। नाउ आई कैन राइट डाउन दी किरचॉफ वोल्टेज लॉ आउटपुट लूप में, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। That is, the basic control action of the MOSFET is that changes in VGS, here changes in VI, जैसे मैं आप शुरू में आपको मैं बता चुकी हूँ कि एम्पलीफायर सर्किट में अब हमने नॉमेनक्लेचर ये सिंपल थोड़े से मुख्तलिफ कर दिए हैं। DC सर्किट्स में हम गेट वोल्टेज को विद रिस्पेक्ट टू सोर्स VGS कहते चले आ रहे थे, अब हम VGS को VI कह रहे हैं, that is the input voltage. So any changes in the input voltage VGS give rise to changes in the drain current ID, and we are using a resistor RD to obtain an output voltage VO. तो VO को हम ट्रांजिस्टर RD के अक्रॉस यानी लोड के अक्रॉस मेजर कर लेते हैं। सो इस तरह आपके पास एक AC इनपुट है जो कि आप गेट टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, बायस कर रहे हैं गेट टर्मिनल को इनपुट के साथ, और आउटपुट वोल्टेज आपको RD के अक्रॉस मिल रही है। सो वी कैन राइट a relationship that output voltage which is drain and source will be therefore VDD minus RD-ID, और इस तरह फिर हम the current ID की इक्वेशन लिख लेते हैं ओम्स लॉ लिख के, और यहाँ से हमें एक स्लोप से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। So these 3 steps are pretty important. ये देखिए इस कर्व में, इस 28 में हमने सारी कर्व्स वो इकट्ठी करके दिखा दी हैं कि कैसे आप प्रोसीड करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से, फिर आप प्लॉट करते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एंड देन वी प्लॉट द ID वर्सेस VGS कर्व, and we can calculate the drain current by using the Kirchhoff law in the as well as the Ohm's law in the output loop of the gate to drain circuit of the NMOS transistor. Now I will take you again to this figure 26B, जो कि मैंने दोबारा रिप्रोड्यूस की है। एक दफ़ा मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, अब मैंने दोबारा आपके लिए रिप्रोड्यूस की है। तो इस फिगर में आप देखिए
कि लोड लाइन हमने ड्रॉ की है ID वर्सेस VD यानी आउटपुट वोल्टेज एज वेल एज आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज जो कि हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स में कन्वेंशनली कहते थे, यहाँ मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स में इस दी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज दैट इज़ ड्रेन वोल्टेज एंड ड्रेन करंट में हमने एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ की है। मैंने आपको दोबारा ट्रायोड रीजन दिखाया है एंड सैचुरेशन रीजन दिखाया है, एंड आई हैड शोन यू द क्यू पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन along the straight line A and C. I had shown you a Q point. Now this Q point has to be selected between the saturation region only, and the saturation region of course is the segment A and B. तो A और B जो आपका स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट है ये कॉरस्पॉन्ड करता है सिर्फ सैचुरेशन रीजन को, B और C का सेगमेंट जो है दैट लाइज इन द ट्रायोड रीजन। So figure 26b shows a sketch of the MOSFET ID output characteristic curves superimposed on which is a straight line representing the ID-VD relationship of the equation that we mentioned, and the straight line in the figure is known as the load line. तो ये लोड लाइन हमने प्लॉट की हुई है जो कि यूजुअल हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। The graphical construction of figure 426b can now be used to determine the output voltage which is at the drain for each given value of the input voltage which is at gate. अब चूंकि मैं AC सिग्नल से डील कर रही हूँ तो मैं साथ साथ दोनों सिंबल्स लिखती जा रही हूँ। आउटपुट आपकी वही आउटपुट है, AC आउटपुट जिसको मैं VO कह रही हूँ, इज द सेम थिंग एज द AC ड्रेन वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज आपकी AC गेट वोल्टेज है। सो इस फिगर 26 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज एज वेल एज द ड्रेन वोल्टेज जो कि मैंने लिखी हुई हैं अलोंग the line from A to B, along this segment, along this straight line, हम different voltages को different regions of the IV characteristic curve के हम ये values calculate कर सकते हैं। We can determine a point of operation called the Q point. तो जैसा मैंने पहले कहा कि Q point normally for best operation is selected somewhere in the middle, ताकि आपकी अगर AC में वेरिएशन भी आए तो आपकी Q पॉइंट की स्विंग इतनी ज़्यादा ना हो कि वो आपके सिग्नल को क्लिप ऑफ कर दे। सो वी कैन ऑपरेट समवेयर बिटवीन A and B, and that is a point Q input voltage which is labeled as IQ, that is input at the quiescent point Q. And that is the voltage that we select for operating. These are the values of the current and the drain voltage, and thus the Q point gives you a set of three values, that is the gate value, the gate voltage, the drain voltage, and correspondingly you get a drain current for a specific Q point which has been shown on this load line. And obviously the slope of the load line is a reciprocal of the resistance RD, the load resistance RD. So we can determine an operating point called Q point or the quiescent point by plotting this IV characteristic curve. It is obtained for VGS is equal to, this is defined as the gate voltage at this Q point is labeled as IQ and has the coordinates V. Output voltage is known as DSQ and the output current is thus labeled as IDQ. So ID, the Q subscript simply denotes that these are the values which we obtain from the Q point. तो आपके पास तीन respective points आ गए, तीन respective values आ गई. The gate voltage labeled as VIQ, input voltage at the Q point, the output voltage which is VDSQ, that is the drain voltage at the Q point, and the drain current at the Q point, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको. So now we can go and move on and calculate the graphical derivation of the transfer characteristics by utilizing the
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो कि मैंने अभी आपको दिखाई. Saturation region operation continues until the output voltage decreases to the point that it is below input voltage by the value which is the threshold voltage. At this point VDS is equal to VGS minus VT. तो हमने तीन कंडीशंस अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 29 में डिस्कस की थी. The voltage of drain, the drain voltage with respect to gate voltage. अगर आपकी drain voltage effective voltage से less है, we are operating in the triode region. अगर आपकी drain voltage greater है effective voltage से, we are operating in the saturation region. लेकिन जब आपकी drain voltage effective voltage के बराबर हो जाए, जो कि point number 2 में मैंने लिखा हुआ है, तो फिर हमारा यानी ड्रेन वोल्टेज इक्वल टू इफेक्टिव वोल्टेज इज योर बाउंड्री कंडीशन, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी, जो कि इस फिगर में भी आपको नजर आ रही है. द डैश्ड लाइन ऑन दिस प्लॉटेड ऑन दिस IV कर्व, अगर आप और से देखिए, द ब्लैक डैश्ड लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन द ट्रायोड एंड सैचुरेशन रीजन. जैसे जैसे आपकी ड्रेन वोल्टेजेस डिक्रीज हो रही हैं या आपके आउटपुट वोल्टेज जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, तो हमारा ट्रांजिस्टर एंटर कर रहा है इनटू द ट्रायोड रीजन, एंड एट द बाउंड्री ऑफ द ट्रायोड रीजन द ड्रेन वोल्टेज इज इक्वल टू द इफेक्टिव वोल्टेज. तो ये चीज़ मैंने लिस्ट की है. सिंस VGS दैट इज द इनपुट वोल्टेज, वी सी दैट फॉर input voltage is less than the threshold voltage, the transistor will be cut off and ID will be 0. I am sorry, I have to go back one point further. तो ये हमने चीज़ें evaluate कर ली थी और अब हम move कर जाते हैं इस determination of the graphical derivation of the transfer characteristic. So qualitatively the circuit works as follows. Since VGS is equal to VI, यानी हमने gate voltage को input voltage VI कहा है, and we see that when the input voltage is less than the threshold voltage, the transfer will be cut off. ये हमें पहले भी हमने कई दफ़ा इस point को highlight किया है कि अगर आपकी drain voltages कम हैं, सिग्निफिकेंटली लो हैं और वो चैनल में इलेक्ट्रॉन्स को सोर्स से ड्रेन तक नहीं मूव करा पा रही, तो फिर नेचुरली आईडी आपकी ज़ीरो होगी. सो ड्रेन करंट विल बी ज़ीरो व्हेन our input is below the threshold voltage, and output at that point is equal to VGS is equal to VDD, and operation will be labeled at some point A. So now we can locate this point A. तो IV कैरेक्टरिस्टिक पर ID और VD कैरेक्टरिस्टिक पर हमें अब ये पॉइंट A नज़र आ रहा है, जो कि हम मोरलेस सेम कर्व लग रही है जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स में थी कि हम पॉइंट A इज़ नाउ कट ऑफ पॉइंट, दैट इज़ देयर इज़ नो ड्रेन current because the gate voltage is small, either 0 or less than the threshold value. As Vi exceeds the thermal voltage, the transistor turns on, ID increases and VOO decreases. अब ये देखिए यहाँ पर हमारे दो मैकेनिज्म हो रहे हैं, क्योंकि आपके सर्किट में एक लोड भी लगा हुआ है और आपके सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन ड्रेन टू गेट भी हो रहा है. ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आपकी करंट बढ़ रही है VG के बढ़ाने से, मोर एंड मोर करंट वुड ड्रॉप अक्रॉस द लोड एंड हेंस आउटपुट वोल्टेज आपके पास कम होती जाएगी. सो एज VI एक्सीड्स VT, यानी जब आपकी गेट वोल्टेज थ्रेश वोल्टेज से बढ़ जाए और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रेन करंट आपको मिलनी शुरू हो जाए, द ट्रांजिस्टर टर्न्स ऑन, ड्रेन करंट इंक्रीजेस एंड आउटपुट voltage decreases. Since
output will initially be high, the transistor will be operating in the saturation region. This corresponds to points along the segment of the load line from A to B. ये अब हम इसको दोबारा देख सकते हैं. ये देखिए point A इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में corresponds to the कट ऑफ रीजन जब गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो. जब गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बढ़ जाए, significant amount of drain current आपको मिल रही हो, तो फिर the current rises and this region corresponds to from A to Q to B. तो A से B तक जो straight line है that corresponds to the third point जो मैंने लिखा हुआ है. As VI exceeds, VI means VG. As VG exceeds यानी threshold से ज़्यादा बढ़ जाए, the transistor turns on, ID increases and VO decreases. So VO will initially be high, the transistor will be operating in the saturation region. This corresponds to points along the segment of the load line from A to B. यानी जब तक आप ट्रायोड रीजन में नहीं पहुंचे, ट्रायोड रीजन में पहुंचने से पहले ये देखिए वंस अगेन, ट्रायोड रीजन में अभी आप नहीं हैं, अभी आप सैचुरेशन रीजन में हैं. तो सैचुरेशन रीजन में जब इनिशियली आपकी आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है तो वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. We can determine a point of operation called the quiescent point. It is obtained for VGS is equal to IQ and has the coordinates जो मैंने पहले आपको लिस्ट करके बताए. Saturation region operation continues until VO decreases to the point that is below VI by VT. यानी सिंपली कहने से मकसद ये था कि saturation region आपका उस वक्त तक वैलिड रहता है, उस वक्त तक आपका NMOS ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा होता है जब तक आपकी गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो. जैसे ही आपकी गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो जाती है, the operation discontinues. At this point, VDS is equal to effective gate voltage and the MOSFET enters into triode region of operation. This is indicated in figure 426B by point B, and point B is defined as the boundary voltage between the saturation and the triode region, which is VOB, and is the difference between input IB and minus VT. और अगर आपकी इनपुट वोल्टेजेस इस बाउंड्री वोल्टेज से ज़्यादा हों, द ट्रांजिस्टर इज ड्रिवन डीपर इनटू द ट्रायोड रीजन, द आउटपुट वोल्टेज decreases slowly towards zero, and point C is obtained for input value equal to VDD. So we can understand this slide 33 again if we refer back to this characteristic curve. अब यहाँ से आप वही चीज़ें जो मैंने लिखी हुई थी आप दोबारा देखिए. Let's try to decrease the drain voltage again towards the minimum value, zero value, और इसी तरह आप VG को डिक्रीज कीजिए. तो बैक वक्त हम दो वोल्टेजेस को लेके अंडरस्टैंड करते हैं द बिहेवियर ऑफ दिस कर्व. एक तो आप ड्रेन वोल्टेज को डिक्रीज करें हत्ता कि हम कहाँ पे पहुँच जाएं, पॉइंट बी पे. एट पॉइंट बी विच इज़ द बाउंड्री बिटवीन ट्रायोड एंड सैचुरेशन रीजन, एट पॉइंट बी आप देखिए इस कर्व में ड्रेन वोल्टेज इज लेस देन दी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इफेक्टिव वोल्टेज. और अगर ड्रेन वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज से और ज़्यादा नीचे हो जाए, यानी बाउंड्री वोल्टेज से ज़्यादा नीचे हो जाए, तो फिर हम ट्रायोड रीजन में एंटर हो जाते हैं. और B से C दस कॉरस्पॉन्ड्स टू द वेरिएशन ऑफ द बाउंड्री वोल्टेज बिलो द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. इसी चीज़ को मैंने रीराइट किया है यहाँ. क्वालिटेटिवली I read again. Qualitatively the circuit works as follows. चूँकि हमने गेट वोल्टेज को अब AC सर्किट में, एम्पलीफायर सर्किट्स में हम DC गेट वोल्टेज को हमने अब VI that is input AC input voltage लेबल किया हुआ है. For a given input AC input voltage VI, we see that as long as input voltage is smaller
than the threshold voltage, the transistor will be cut off and there will be no drain current, and the characteristic would be marked as by point A. ये देखिए point A पर कोई करंट आपको नहीं मिल रही. अब हम दोबारा पढ़ लेते हैं. Qualitatively the input circuit works as follows. अब आपकी जब इनपुट वोल्टेजेस थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस से लो हों, the transistor will be cut off and it is shown by a point A on the IV characteristic curve. और इस पॉइंट पर जो हमारी आउटपुट है, चूँकि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही ट्रांजिस्टर में, तो आउटपुट करंट which is the same as the gate to source voltage, which is the same as the drain voltages. All the currents are now equal. अब जैसे जैसे हमारी इनपुट वोल्टेज यानी गेट की वोल्टेज बढ़ती है इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, the transistor turns on and ID increases and VO decreases. क्योंकि ये जैसे मैंने पहले बताया कि ID आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लोड एंड सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल. लेकिन इनिशियली जब आपकी आईडी आउटपुट वोल्टेज वीओ हाई थी, तो फिर अब हम मूव कर रहे हैं इसके बढ़ाने से, आईडी वीआई के बढ़ाने से हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है along the line A and B. So we can determine operating point called Q. तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं the quiescent point. और ये मैंने आपको तफसील दोबारा बता दी है कि सैचुरेशन रीजन और ट्रायोड रीजन में एक डिमार्केशन है, एक डिवीजन है वोल्टेज की, एंड दैट इज़ नोन एज द बाउंड्री वोल्टेज बिटवीन सैचुरेशन एंड triode region. So to operate the MOSFET as an amplifier, we make use of the saturation mode segment of the transfer curve, which is section A to B. The device is biased at a point located somewhere close to the middle of the curve, and the point Q is called the quiescent point. And the voltage signal to be amplified, labeled as VI, is then superimposed on the DC voltage VIQ as shown in the next slide. ये देखिए, ये हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व पहले भी 2-3 दफ़ा दिखाई है. अब मैंने इसको दोबारा रिप्रोड्यूस किया है कि अब इस ऑपरेशन को समझने के बाद कि सैचुरेशन रीजन में ये किस तरह ऑपरेट करता है, हम एक क्यू पॉइंट चूज़ कर लें, और ये क्यू पॉइंट फिर आपको वो डीसी गेट वोल्टेज दे देगा जिस पर के आप फिर एसी को सुपर इम्पोज करके ट्रांजिस्टर को विदाउट डिस्टॉर्शन एम्पलीफाई कर सकते हैं सिग्नल को. Having discussed the qualitative mechanism to convert or to design an amplifier using a N-channel MOSFET transistor, then we can calculate or define the amplification factor of such a linear amplifier circuit. The amplifier will be very linear, and the output will have the same waveform as VI, except that it will be larger by a factor equal to the voltage gain of the amplifier when the amplifier is being operated at the quiescent point Q. And this amplification factor is, as we learnt earlier, is a ratio of the output voltage, small change in output voltage to small change in input voltage by when the transistor is operating at some input, keeping some input gate voltage constant, which is VIQ. The voltage gain is equal to the slope of the transfer curve at the bias point Q. And we also note that the slope is negative, and thus the basic common source amplifier is inverting. और ये वही क्राइटेरियन है जो कि हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में भी स्टडी किया था कि we are getting an inverted phase, but yet we are getting an amplified signal. तो इस तरह हमने ये एक टेक्निक डेवलप की है जिससे कि हम ट्रांजिस्टर को
MOSFET ट्रांजिस्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं टू ऑपरेट एज अ लीनियर एम्पलीफायर। और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग यूनिक फीचर हमने देखा NMOS ट्रांजिस्टर में कि करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जो है वो लीनियर नहीं था, स्क्वायर लॉ था, बट वी केम अबाउट this hurdle by designing the transfer characteristic curve and then choosing in that transfer characteristic curve a segment of the curve which was linear, and that would give you the linear operation of the transistor, और उसका फिर हमने gain भी calculate किया। Now this slide is devoted to the operation of the transistor as a switch। शुरू में मैंने बताया था आपको कि अगर हम ट्रायोड रीजन में ऑपरेट करें या सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करें तो हमारा NMOS ट्रांजिस्टर जो है वो एनालॉग एज वेल एज डिजिटल फंक्शंस आपको दे सकता है। तो एनालॉग ऑपरेशन के लिए जो कि एम्पलीफायर सर्किट में हमें चाहिए, हमने सेचुरेशन रीजन ऑफ द NMOS ट्रांजिस्टर को यूटिलाइज किया था। When MOSFET is used as a switch, it is operated at the extreme points of the transfer curve, जो कि मैंने आपको स्लाइड 35 में दिखाया है। ये देखिए, आप सेगमेंट AX और XA या AX और सेगमेंट पॉइंट C पर अगर आप फोकस करें तो that's where we can use the transistor, that's where the transistor in these regions can be made to operate as a switch. Specifically, the device is turned off by keeping the input voltage below the threshold voltage, and that would result in the operation somewhere on the segment XA, and output voltage will be equal to VDD. The switch is turned on by applying a voltage close to VDD, resulting in operation close to point C with VO very small at C. VO is equal to VOC, that is output at the point C. The common source MOS circuit can be used as a logic inverter with the low voltage level close to 0 volt and the high level close to VDD. That is at the two extreme, which is again the cutoff region and the end of the triode region. In these two regions, the transistor can be, the MOSFET transistor can be made to operate as a switch. Or that brings us to the end of today's lecture, in which we studied the conversion or designing of the NMOS transistor into an amplifier circuit, and we calculated the amplifier gain as well, and we discussed that in the three regions, namely the cutoff region, the saturation region and the triode region, we can appropriately design the transistor to operate as a circuit, to operate as a linear amplifier as well as a switch. So we will continue with the next important topic, and that is the biasing of the NMOS transistor in various ways, as we did for the case of the BJTs. So I look forward to seeing you for my next lecture, and I do hope that you would retain, you are going to retain most of the stuff that we discussed today. Thank you so much, and Allah Hafiz.